amplifier, dual input, single input. Then we have seen the block diagram of operational amplifier, how different four stages are there: dual input, balanced output, then dual input unbalanced, and level shifting stage and power, complementary symmetric push-pull power amplifier. Then we have seen the basic symbol of operational amplifier. We have 5 terminals, 2 for power supply, 2 for input, non-inverting and inverting, and 1 is for output. Now in this case, we have seen this as a symbol, and this is a we can say transfer characteristic. So how the output varies with the differential input. So the slope indicates that for a small change in differential input, there is a large change in output. And that's why I claim that the operational amplifier is having a very high gain. Here you can see that the gain is about 2 into 10 to power 5 roughly. So we have large gain. And here also you can observe this is a linear range, and then it gets saturated. So it does not mean that you are giving a 1 volt and you can have thousands of volts, but it will saturate. So in between, this is a useful range where we do use it. It doesn't mean that the saturation voltage is of no use. In comparator, we use this one in open loop configuration. But the useful range is in most of the application is this one. So now today we'll start our journey again. So we can say we have seen the block diagram and the symbol of this one. So what does this, we can say operational amplifier is? Couple. This is a direct coupled high gain amplifier. One of the salient features, it is a direct coupled one. It has a very high gain and consisting of one or more stages of differential amplifier that we have seen in the block diagram, isn't it? And what are the different stages that we already know, so that I will not elaborate here, but it can be used amplify DC and AC signals. कल ही देखिए हमने कैसे एम्प्लीफिकेशन करता है वो. ओरिजिनली इट इज डिजाइन टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसलिए ऑपरेशन नाम है. मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, subtraction, then multiplication and multiplication, integration, differentiation, etc. Then it is also able to work as an active filter. These are different applications you can say. Now I have deliberately used the word active. What does it mean? That we'll see in the coming lecture. Then also it can be used as an oscillator. So many applications are there. That's why it is very popular. Operational amplifier is useful in, you cannot name the application where it is not. Comparators, then regulators, etc. So various applications are there. Various applications are there. Now coming out to some of the features we can say. So here we will start our journey with the ideal op-amp. Why? When we should say the ideal characteristic or ideal op-amp. So let us see the ideal op-amp. Many a times in exam, what are the different ideal characteristics that are being asked? Okay. So one by one we will see, we will elaborate, and in some way if you are not able to understand, you can interrupt me. Okay. So an ideal op-amp exhibit, you can say following electrical characteristics.
Now, what are these different electrical characteristics? That is very important. So I will try to be right in a very well. Infinite voltage gain. Mind it, it is ideal, not a actual one. Infinite voltage, let's say A or D. What is the significance of infinite voltage gain? Can anybody tell me? It means it can amplify any level of signal, any level of, means may it be nanovolt, may it be microvolt, it is able to amplify as it is having a very infinite voltage gain. Now, आपको याद करने के हिसाब से आप डायरेक्ट शॉर्ट में ऐसे लिख कर रख देने का, ये यहां से अपन समझते हैं, यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है। सेकंड, इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस, कभी रेजिस्टेंस बोलता हूं, कभी इंपीडेंस बोलता हूं, आपके ध्यान में आया होगा, मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूं। कब यूज वर्ड करूंगा, जब प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क रहेगा तो आई कैन से रेजिस्टेंस, बट व्हेन देयर इज अ कैपेसिटर और इंडक्टर और एनी पैसिव, then there will be a impedance word. So infinite input resistance, so I can say Ri equal to infinite. Now what is it, what is the significance of this? That almost any signal source can drive this op-amp, as the input impedance, input resistance is infinite. जो भी हम सिग्नल इसको अटैच करेंगे, इट इज एबल टू एक्वायर दैट सिग्नल. सो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड in any amplifier, that input resistance should be as high as possible, but in the operational amplifier it is very high, in the mega ohms of range. अगर आप ट्रांजिस्टराइज जब करते हैं तो वो सिर्फ किलो ओम्स में रहता है उसका इनपुट इम्पीडेंस, जबकि यहाँ मेगा ओम में रहता है. और आप सचमुच उसके फीचर्स प्रैक्टिकली जब देखेंगे तो उसकी यूटिलिटी पता चलेगी, ठीक है. Then the next characteristic is zero output resistance. Zero output resistance. This is also desirable. It is desirable that output resistance should be as low as possible. Ideally, it is zero. Actual में थोड़ा ohms में रहता है. तो zero output resistance का क्या significance होगा? That output में लगाना है, output के बारे में बात करेंगे. हाँ बोलो 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 बोलो. गेन ज्यादा रहेगा. नहीं, गेन का और इसका संबंध नहीं है. गेन इज अ डिफरेंट पैरामीटर, इनपुट रेजिस्टेंस इज अ डिफरेंट पैरामीटर, आउटपुट रेजिस्टेंस इज अ डिफरेंट पैरामीटर. देखो, गेन इनफाइनाइट या बहुत ज्यादा हाई होने से इवन अ माइक्रो सिग्नल कैन बी एम्पलीफाइड. इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होने से इट कैन ड्राइव एनी सोर्स कैन बी ड्रिवन बाय दिस ऑप-एम्प. एंड आउटपुट में, आउटपुट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो तो आउटपुट साइड में बात करना कि any infinite output devices can be driven by this op-amp. Ideally बोल रहा हूँ बना, just mind it, I am saying it ideally, that any number of stages can be driven by this op-amp. Means any number of devices can be connected at the output. Otherwise क्या होता है, अगर output resistance कुछ finite होता है तो हम कुछ devices के बाद उसका drop out होना शुरू हो जाता है, signal loss होगा, तो we were not able to use it. तो इसका ये मतलब है कि हम अब इसको आइडियल को रियलिस्टिक कैसे लगाना, रियलिस्टिक इस तरह लगाना कि वोल्टेज गेन इज वेरी हाई, तो इट कैन एम्पलीफाई वेरी माइनर सिग्नल. इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, तो एनी सोर्स रेजिस्टेंस, कितना भी सोर्स रेजिस्टेंस का सिग्नल रहा तो भी ड्राइव कर सकते हैं. आउटपुट रेजिस्टेंस इज जीरो, मतलब वेरी लो, so it can drive in many devices. इनफाइनाइट की जगह मेनी डिवाइसेस बोलने का. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जीरो आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट वोल्टेज इज जीरो. इनपुट वोल्टेज इज जीरो. In some devices, even if the input is not connected, there is some residual or some output voltage, some voltage at the output, which is not desired. जब हमने कोई इनपुट दिया ही नहीं तो आउटपुट रहना नहीं चाहिए, बराबर है ना. बट ऑप-एम्प की विशेषता है कि इट इज गिविंग अस आइडियली जीरो आउटपुट वोल्टेज व्हेन देयर इज नो इनपुट वोल्टेज कनेक्टेड. VIO इक्वल्स टू जीरो. बाद में बताऊंगा इसके बारे में. अब और एक पैरामीटर है इनफाइनाइट बैंडविड्थ. डू यू नो टर्म? क्या होता है बैंडविड्थ?
सिग्नल की बैंडविड्थ सर फ्रीक्वेंसी रेंज। बेस्ट वे, यस इट इज। कभी भी कोई भी वर्ड अगर नया आता है ना, पहले उस वर्ड का जैसे डिक्शनरी मीनिंग बोलते हैं ना, उसको समझने की कोशिश करना, तो आपके समझ में आ जाएगा। बैंड, अब बैंड इज अ रेंज, है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी में हम बैंड जब बोलते थे कि रेंज होती है, मीडियम वेव, मीडियम बैंड, शॉर्ट बैंड, यानी एक रेंज होती है, रेंज ऑफ विड्थ। तो फ्रीक्वेंसी की रेंज है ये, जो फ्रीक्वेंसी की रेंज इट इज एबल टू एम्पलीफाई। आप लोग जब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ कॉमन इमीटर एम्पलीफायर या आरसी कपल्ड या जब निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप एक इनपुट सिग्नल देते हैं साइनोसाइडल, और आउटपुट में कितना मिल रहा है वो आप मेजर करते हैं, फिर उसका रेशियो निकाल के गेन का पता करते हैं। अब क्या करते हैं, इनपुट सिग्नल की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज करते जाते हैं, सेम इनपुट को सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, और उस फ्रीक्वेंसी चेंज के साथ आउटपुट किस तरीके से चेंज हो रहा है, दैट यू ऑब्जर्विंग। So it means we know that for different frequencies there may be variation in the output. So in what way it is allowing the different frequencies to be amplified. So whatever the range of frequencies it is able to amplify, that range of frequency is known as bandwidth. अब ideally क्या बोल रहा है ये? Infinite bandwidth. इसका मतलब ये it can able, इसका meaning क्या हो गया? It is able to amplify, it is able to amplify right from 0 hertz to infinite hertz, यानी कि कोई भी फ्रीक्वेंसी it is able to amplify, बराबर है? तो ये हो गया आइडियली। तो एक्चुअल केस में हम क्या बोलेंगे, इट इज एबल टू एम्पलीफाई ए लार्ज फ्रीक्वेंसी रेंज, या इसका बैंडविड्थ बहुत हाई होता है, लाइक दैट यू नीड टू से। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अब ये यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में यूज कर ही रहा हूं, लेकिन उसका मीनिंग बाद में बताऊंगा। इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, पहली बार ये वर्ड आ रहा है, CMRR, और वाइवा रहो या पेपर रहो, इसकी डेफिनेशन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? अभी इसको क्या मीनिंग है ये बताता हूं बाद में, ठीक है? इनफाइनाइट कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो मीन्स कॉमन मोड नॉइजेस विल बी रिड्यूस, कॉमन मोड नॉइज वोल्टेज विल बी 0, ठीक है? इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे हम, ठीक है? और एक कैरेक्टरिस्टिक है या इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको आने वाला है CMRR के साथ, स्लीव रेट। ये एक नया वर्ड आएगा आपको, नई कैरेक्टरिस्टिक। तो ये भी इनफाइनाइट स्लीव रेट है एक्चुअली, अभी इसकी डेफिनेशन में बताऊंगा ये आपको। पर हाउ द आउटपुट वोल्टेज चेंजेस विद द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी फास्ट चेंज हो रही तो उसको वो कैसे टॉलरेट कर रहा है या उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, नॉट टॉलरेट, हाउ इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी। If there is a large change in frequency and even if it is able to meet out that requirement, it is able to amplify that signal, then we can say it has a very high slew rate. जबकि लार्ज चेंज हो जाए और आउटपुट बराबर अगर चेंज नहीं हो पाया तो हम बोलेंगे कि स्लीव रेट इज लो। तो आइडियली इट इज सेड कि इनफाइनाइट स्लीव रेट, आइडियली CMRR इनफाइनाइट। सिर्फ इनपुट यानी 0 क्या है वो ध्यान रखो ताकि आपको बाद में डिफिकल्टी ना हो समझने में, ठीक है? तो दीज आर दी मोटा मोटी 7 or 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू शुड नो आइडियली। तो लेट अस रिवाइज, क्या क्या बोले थे हमने? इनफाइनाइट वोल्टेज गेन, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, और आउटपुट रेजिस्टेंस इज 0 आइडियली, एंड 0 आउटपुट ऑफसेट, 0 आउटपुट वोल्टेज व्हेन इनपुट वोल्टेज इज 0, ठीक है? Means when there is no input voltage, there should not be any output voltage. So ideally it is saying yes, that is. Then infinite bandwidth, that it is able to amplify any frequency, 0 hertz to infinite. Okay, right from 0 hertz to infinite. Then infinite CMRR, it is able to reject any noise, common mode noise, CMRR, इसके डेफिनेशन देखेंगे। स्लीव रेट इनफाइनाइट मीन्स इट इज एबल टू कोप अप विद एनी चेंज इन इनपुट फ्रीक्वेंसी। इनफाइनाइट होने से अगर एकदम से 0 हर्ट्ज से एकदम इनफाइनाइट हर्ट्ज भी चेंज हो जाए
तो भी आउटपुट वोल्टेज बराबर एम्पलीफाई होता है, ऐसा आइडियली बोला है, नॉट रियलिस्टिक. So I hope these characteristics you are able to understand, because many a times in exam also it is asked what are the ideal characteristics of operational amplifier. Any problem with this one, so that we can go ahead if there is no problem. Bandwidth. Hope you know this terminology, bandwidth. I suppose there is no problem. Now we will see कल हमने सिंबल देखे थे ऑप एम्प का, तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे. एक्चुअली ऑप एम्प के अंदर क्या रहता है, आप बताइए, कोई बता सकेगा? ऑप एम्प के अंदर क्या रहता है, उस आईसी के अंदर क्या रहता है? अरे बहुत सारे स्टेजेस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर रहता है, मतलब ट्रांजिस्टराइज या फेट बेस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के वेरियस स्टेजेस होते हैं ना? यस सर. अगर उसको मैं एनालाइज करने की कोशिश करूंगा तो मुझे डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बहुत सारे स्टेजेस को एनालाइज करना पड़ेगा. बट हाउ इट इज इक्विवेलेंटली बिहेविंग, उसको इक्विवेलेंटली कैसे होगा वो हम समझेंगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा. हमको उसके अंदर देखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, कितने ट्रांजिस्टर है. वो 1000 हो सकते, 3000 हो सकते, 1000 हो सकते, या 2-4 ही हो सकते. वो हम नहीं वरी करेंगे. तो इक्विवेलेंट कैसे रहेगा, कैसे दिखेगा, तो वो हमको सिंबॉलिकली देखना है. ठीक है, अब जो मैं बता रहा हूँ, बना रहा हूँ, उसको ऑब्जर्व करो. ये सिंबल आपने देखा कल ऑप एम्प का, ठीक है? Equivalently, I can show that between inverting and non-inverting, there is a input resistance Ri. ठीक है? सपोज ये अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल है और ये नॉन इन्वर्टिंग है, तो आई कैन शो दिस एज अ नेगेटिव, दिस एज अ पॉजिटिव. ठीक है, ये हो गया इनपुट साइड. तो इनपुट साइड में अगर ये सप्लाई दिखा दो आप चाहे तो 2 पोर्ट में यानी इनपुट साइड होता है और आउटपुट साइड होता है ना? हम हर चीज में एक इनपुट साइड होता है और ये आउटपुट. तो आई कैन से इक्विवेलेंटली इनपुट साइड में हम कैसे दिखा सकते हैं? 2 टर्मिनल और उसके बीच में इनपुट रेजिस्टेंस आ रहा है. अब आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट साइड क्या होता है? तो कुछ नहीं, इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो दिखा देंगे हम यहाँ पे. ये है आउटपुट वोल्टेज. बाहरी दुनिया में क्या है? ये सिर्फ टर्मिनल है. बाहरी दुनिया में ये एक टर्मिनल है, बाहरी दुनिया में एक टर्मिनल है, इसके बीच में इनपुट रेजिस्टेंस है. और यहाँ पे ये आउटपुट रेजिस्टेंस RO इन सीरीज विथ एक वोल्टेज सोर्स विच इज ए ग्राउंडेड वन, ठीक है? वोल्टेज सोर्स, और उस वोल्टेज सोर्स कितना रहेगा? A टाइम्स VID. मतलब आपके समझ में आ गया कि हम लोग VO इक्वल टू क्या लिखते थे? A टाइम्स VID. तो ये जो VID का एम्पलीफाइड वर्जन है, ये कहाँ मिलता है हमको? आउटपुट में. तो दैट इज व्हाट इट इज शोन. अब अगर इनपुट साइड से आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो भी सिग्नल लगाओगे दैट विल बी देयर इन द इनपुट रेजिस्टेंस साइड. अगर आउटपुट से ऑब्जर्व करोगे आप तो क्या रहेगा? द आउटपुट वोल्टेज इज एट दिस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड. तो आपका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? AVID इन सीरीज विथ सर्टन ड्रॉप अक्रॉस RO. और सर्टन ड्रॉप अक्रॉस RO लाजमी है, होगा ही. क्यों होगा? क्योंकि देयर इज अ फाइनाइट आउटपुट रेजिस्टेंस. आइडियली इट इज शॉर्ट सर्किट, आइडियली इट इज 0, आइडियली RO इक्वल टू 0. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस सम हंड्रेड्स ऑफ ओम रहता है, तो कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा. मतलब ट्रू आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि सम ड्रॉप यहाँ पे होता है. जैसे सोर्स में इनपुट रेजिस्टेंस रहता है, वैसे आउटपुट में RO आउटपुट रेजिस्टेंस रहता है. क्या ये इक्विवेलेंट डायग्राम आपके ध्यान में है? कितना सिंपल है. इनपुट साइड में इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट साइड में एक वोल्टेज सोर्स विच इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज, a amplified version of the differential input voltage AVID in series with output resistance. This is the equivalent circuit diagram of op amp. ठीक है, ये मालूम रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी एनालाइज करने के लिए ये काम आता है. डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, डिफरेंशियल यानी इनके बीच में, तो VID यानी क्या होगा? V1 minus V2, where V1 is non-inverting
इनपुट वोल्टेज, और V2 क्या होगा, इन्वर्टिंग इनपुट वोल्टेज। तभी तो माइनस हो रहा है ना, तभी वो माइनस हो रहा है, ठीक है। तो V2 इज voltage at the inverting terminal, V1 is voltage at the non-inverting terminal. So this is the equivalent circuit of op-amp, ठीक है। और ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव ऑलरेडी सीन, बराबर है। ये आईसी रहती कैसी है, ये इस तरीके से आईसी रहती है, दिख रही है आईसी। यस सर। कितने पिन की है, 8। इसको डीआईपी बोलते हैं। क्या मीनिंग है डीआईपी, इसका पैकेज जो है उसको डीआईपी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, अब इसके पिन डायग्राम देखेंगे। डीआईपी का मतलब होता है ड्यूअल इन पैकेज, जहां पे सिमेट्रिकल लेफ्ट साइड और राइट साइड रहता है, मतलब 4 पिन इस साइड 4 पिन उस साइड, तो उसको डीआईपी मतलब ड्यूअल इन पैकेज, ड्यूअल साइड दोनों इक्वल। और ये नॉच दिख रहा है, पहले भी आप देख चुके 7/4 सीरीज में, ये नॉच बताता है कि ये पिन नंबर 1 है, ठीक है, नॉच। तो दिस विल बी योर पिन 1 2 3 4, और ये साइक्लिक ऑर्डर में रहता है, इसलिए 5 6 7 8, ठीक है। ये पिन डायग्राम कैसे रहता है इसको बताने के लिए मैं ये दिख रहा है क्या आपको? यस सर। ठीक है, अब 1 बाय 1 पिन नंबर देखेंगे। कितने पिन की आईसी है? 8 पिन। 8 पिन की आईसी, ठीक है। इसमें जो है मैं इस तरीके से कई बार ध्यान रखता हूँ, इसका नाम है 741। तो 7 और 4, ये 7 और 4 ये पावर सप्लाई के हैं, इसका याद मैं अपने आप से रखता हूँ। 7 इज प्लस VCC, 4 इज माइनस VE, ये 7 4 में ऐसे याद रखता हूँ मेरे मन से, ठीक है। 7 इज प्लस VCC और 4 नंबर इज -4। अब शुरू करने का 2 और 3, 2 इज अ इन्वर्टिंग, 3 इज अ नॉन इन्वर्टिंग, और 6 इज आउटपुट। जानबूझ के रैंडम बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग के इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, पहला है पावर सप्लाई, बाद में है इनपुट और बाद में है आउटपुट। वो छोड़ के क्या क्या बचे फिर वो बाद में देखेंगे। तो पावर सप्लाई क्या हो गया, +7 प्लस VCC एट पिन 7 माइनस VEE एट पिन 4, ये हो गया। पिन 2 इज इन्वर्टिंग, पिन 3 इज नॉन इन्वर्टिंग और पिन 6 इज आउटपुट। अब 3 पिन बच गए, उसमें से एक पिन जो है नो कनेक्शन, इसका कोई यूज नहीं, इसका कोई यूज नहीं। और जो एक्सट्रीम एंड में बच गए पिन 1 और पिन 5, इसको बोलते हैं ऑफसेट नल। अब ये ऑफसेट नल क्या होता है ये मैं थोड़ा 1-5 मिनट बाद समझाऊंगा। तो पिन डायग्राम समझ में आया कि पहले आपके ये बताओ क्या क्या पिन देखे हमने। एज द नेम सेज 7 4, तो 7 इज प्लस VCC, 4 इज माइनस VCC, ठीक है। 2 इज इन्वर्टिंग, पिन 3 इज नॉन इन्वर्टिंग, पिन 6 इज आउटपुट। याद ही हो जाता है बाद में जब आप लोग इस पे काम करेंगे ना, ये आउटपुट। तो इस तरीके से ये हो गए 5 पिन। अब बचे 3 पिन, तो 8 इज नो कनेक्शन। अब बचे एक्सट्रीम एंड के पिन 1 और 5, तो इसको बोलते हैं ऑफसेट नल। There are certain characteristics or parameters associated with this op-amp. So now that we need to learn. ठीक है, तो अब डिफरेंट पैरामीटर्स को हम डिफाइन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये हम 741 पहली बार यूज कर रहे हैं, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर बता दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 741 दिस नॉर्मली विल यूज, एक 358 भी मेंशन किया हुआ है लेकिन हम नॉर्मली वो यूज नहीं करते, ओके। अब ये IC 741 जब आप देखेंगे कहीं भी, उसको कुछ सफिक्स भी रह सकता है, A, B, 741B, 741C या और कुछ भी रह सकता है। तो उन सब के अपने अपने मीनिंग है। अभी के केस में 741A इज द बेस्ट वन, इसके बेस्ट फीचर्स है और इसको थोड़ा सा वर्स्ट केस बोला जाता है। तो हम लोग हर पैरामीटर वर्स्ट केस के हिसाब से देखेंगे ताकि उससे बेहतरीन क्या है हमको पता चलेगा, ठीक है। तो हम हर पैरामीटर को इससे देखेंगे, एक रेफरेंस रख लेते, ठीक है। अब ये IC 741 है, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, थोड़ा सा सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं इससे। इसी IC, इसी ऑप-एम्प के सेलिएंट फीचर नॉर्मली, और एक हम जो देखने, यानी हम देखने वाले नहीं है लेकिन ये भी बहुत एप्लीकेशंस में यूज होता है।
इस 741 में आपने देखा एक ही ऑप एम्प है, लेकिन LM324 में 4 ऑप एम्प रहते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चीप में 4 ऑप एम्प एक में ही मिल जाते हैं, इसलिए इसको बहुत पॉपुलरली यूज करते हैं। और आपके एग्जाम यानी आपके सिलेबस में और एक जो मेंशन किया है LM358, इसमें 2 ऑप एम्प रहते हैं। ये इसके पिन डायग्राम देखेंगे और 741 के देखेंगे। 741 का जस्ट देखे हैं तो 741 के जो बेस्ट फीचर्स है, पहला सेलिएंट फीचर है कि नो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन इज रिक्वायर्ड। नो एक्सटर्नल होता क्या है, कुछ आईसी ऐसी है कि उसके फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन के लिए आरसी सर्किट बाहर से लगाना पड़ता है। नो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन रिक्वायर्ड मतलब कुछ भी हार्डवेयर ज्यादा का कनेक्ट करना ही नहीं तो एक उसकी कैपेसिटर की वैल्यू कैलकुलेट करके हमको लगाना पड़ता है। तो ये इंटरनली है, एक्सटर्नल नहीं लगा रहे, मतलब उसने इंटरनली करके दिया है। और उसमें और एक फीचर है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, यानी गलती से अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए आउटपुट का तो ये फेल नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। देन देयर इज ऑफसेट नल कैपेबिलिटी। इसका ऑफसेट नल कर सकते हैं। अब भी अपने पिन 1 और 5 देखे, ये इसमें कैपेबिलिटी है ऑफसेट नल कैपेबिलिटी। किसी किसी में नहीं रहता है तो हमको एक्सटर्नल सर्किट बहुत सारे जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो यहाँ पे उसके 3 दे चुके हैं ऑफसेट नल। अब ये ऑफसेट टर्म क्या होता है मैं आपको बताऊंगा ये समय के साथ में। लार्ज कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल गेन। कॉमन मोड एंड डिफरेंशियल गेन, इसका गेन बहुत ज्यादा हाई है ये बता रहा है, पर दोनों गेन ज्यादा होते हैं। सॉरी, गेन ना बोलते हुए इसको वोल्टेज रेंजेस बोलेंगे इसमें। तो डिफरेंट वोल्टेज रेंज हम लोग लार्ज यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देन लो पावर कंजम्पशन, ये भी एक अच्छा सेलिएंट फीचर है। एंड एक है नो लैचअप प्रॉब्लम। क्या होता है, कभी कभी एक आधे सेचुरेशन में जब चले जाता है ना तो बाहर आने के लिए टाइम लेता है, तो वो ऐसा है ही नहीं इसमें प्रॉब्लम। नो यानी एक में ही लटक के नहीं रह जाता। लैच यानी रुक जाना, स्टॉप हो जाना, उसमें रह जाना। हम फ्लिप फ्लॉप में लैच बोलते थे ना, डेटा स्टोर करना है तो वो लैच्ड हो जाता था, तो नो लैचअप प्रॉब्लम। तो दीज आर सम ऑफ द सेलिएंट फीचर्स दैट यू शुड नो फॉर दिस IC 74, ठीक है। तो क्या क्या है, नो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी कंपेंसेशन रिक्वायर्ड, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ऑफसेट नल कैपेबिलिटी, large common mode and differential voltage ranges, low power consumption, and no latch-up problem. So let us now see the different parameters associated with this one. Now you will come across some 4 to 5 or even there tens of parameters are there which are new to you. चलो पहला पैरामीटर डिफाइन करते हैं, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। होता क्या है, although I said in the ideal characteristic, what I said, there is a output zero output voltage when no input voltage is connected. ये क्या बोला है यहाँ पे, zero output voltage when input voltage is zero। ये आइडियली बोला है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं होता है। जब हम कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं दिए ना, तब भी थोड़ा सा आउटपुट वोल्टेज होता है। इनपुट वोल्टेज विच वी आर अप्लाइंग in order to nullify the output voltage is known as input offset voltage। क्या समझ में आया? The voltage which we are, मैं थोड़ा सा रफ लैंग्वेज में पहले बोल रहा हूँ, फिर आपको डेफिनेशन वाली बाद में बताता हूँ, ठीक है। जो हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इतना अप्लाई करेंगे कि आउटपुट का वोल्टेज 0 हो जाए, और फिर उसको सेट कर देंगे कि अब ये आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। किस पे, कि हमने कोई इनपुट नहीं कनेक्ट किया था, लेकिन हमने डेलिबरेटली सर्टेन डीसी वोल्टेज इनपुट को दे के उसका आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस कर दे, उसको बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। तो लेट मी राइट द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ दिस वन। द वोल्टेज दैट मस्ट बी अप्लाइड एट द इनपुट between two input terminals of an op amp to null the output or to nullify the output, to null the output. Diagrammatically it can be shown like this one. If this is the op amp, this is the output voltage which I am making it 0 by connecting voltage at
ये समझाने के लिए बनाया है, ऐसा एक्चुअली हम करते नहीं है ना। अगर ये इसको बोल दिया VDC1 और कुछ सोर्स रेजिस्टेंस है इसका, सपोज ये VDC2, then our VIO will be difference of these two voltage, VDC1 minus VDC2। ये समझाने के लिए बताया बना, दो सप्लाई वोल्टेज कभी नहीं लगाते, दो बैटरी नहीं लगाते, बट वी आर एडजस्टिंग दिस VDC1 एंड VDC2 लुकिंग टू द, यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ पे मल्टीमीटर लगाया और आउटपुट वोल्टेज देख रहे, और ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा रहे VDC1 या VDC2, सो दैट आउटपुट वोल्टेज कम्स आउट टू 0 वोल्ट। जिस वोल्टेज पे आएगा इन दोनों के डिफरेंस वोल्टेज को हम बोलेंगे इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। So the voltage that must be applied between two input terminals of an op-amp to null the output is known as input offset voltage. And a typical value, हर बात में मैं एक बार टिपिकल वैल्यू देने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि ये कितना होता है। टिपिकल वैल्यू इज किस आईसी के लिए, तो एक हम रेफरेंस ले लेते हैं 741C। टिपिकल वैल्यू फॉर 741C इज 6 मिलीवोल्ट। 6 मिलीवोल्ट, ये आप डेटा शीट में देखेंगे तो इसका दिखाया जाएगा 6 मिलीवोल्ट। आप डेफिनेशन लिखो और साथ में टिपिकल वैल्यू ऑफ 741C दोगे तो इट विल इम्प्रेस द वैल्यूअर। ठीक है, डेफिनेशन लिखना और टिपिकल वैल्यू फॉर दिस पैरामीटर ऑफ 741C इज 6 मिलीवोल्ट। और जो बहुत अच्छे ऑप-एम्प होते हैं ना, उसमें तो माइक्रो वोल्ट में रहते हैं, बहुत ही कम रहता है, मतलब इतना कम वोल्ट हमको इनपुट में अप्लाई करना है कि आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस होगा, माइक्रो वोल्ट में रहते हैं, पर उसकी कॉस्ट भी उतनी ज्यादा होती है। तो इज इट क्लियर? कैन आई गो अहेड? इनपुट ऑफसेट वोल्टेज क्लियर हो गया क्या? हेलो? यस सर। यस सर। तो हम सेकंड पैरामीटर की तरफ जाते हैं। जैसे वोल्टेज है तो वैसे करंट भी है। अब सबसे बड़ी बात बताना ये रह गया मेरा, ये पैरामीटर क्यों जन्म ले रहे हैं, बताओ पर ये क्यों ले रहा है ये जन्म, यानी ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं या क्यों आ गया ये। और जो ऑप-एम्प के अंदर बहुत सारे डिफरेंशियल एम्पलीफायर होते हैं वो ट्रांजिस्टर से बने होते हैं। हमने बोला था कि वो दोनों ट्रांजिस्टर शुड बी मैच्ड, दोनों ट्रांजिस्टर शुड बी आइडेंटिकल। बट कितना भी सेमीकंडक्टर अगर हम लोग यूज करेंगे तो थोड़ा सा 1-2 एटम इधर उधर होंगे ही, इसलिए दोनों ट्रांजिस्टर में थोड़ा मिसमैच होता है। और जैसे ही थोड़ा मिसमैच होता है तो वहां पे ये जो सोर्सेस है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज रहो या इनपुट ऑफसेट करंट, जो आइडियली हम मान के जा रहे हैं कि 0 होता है, वो 0 ना होते हुए सम पैरामीटर, सम वैल्यू होती है। ठीक है, सो वी कैन से फॉर द नॉन आइडियल phenomenon these characteristics are taking or coming into picture. So now coming to the input offset current. तो जैसे offset का मतलब ही है सेट से ऑफ, तो offset जो सेट से थोड़ा दूर है, सेट क्या होना चाहिए, that there should be output voltage 0 when no input voltage is connected, but we are observing there is a output voltage even we are not connected the input. So in order to nullify that, we need to connect certain input voltage. To nullify that output voltage is the input offset voltage. Similarly, input offset current is there that both the terminals are not having at the same current. So when we take a difference, there is a finite difference of current. So that algebraic difference is known as input offset current. ठीक है? So I'll write down the definition of this. The algebraic difference. मैं को कह सकता हूं कि मैं हर वर्ड पे ध्यान देता हूं। ये अलजेब्रिक वर्ड क्यों आया होगा, ये कोई बता सकता है क्या मुझे? The algebraic difference between the currents into the inverting terminal and non-inverting terminal is known as input offset current. इसको हम दिखाएंगे IIO को मैथमेटिकली लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ IB1 माइनस IB2। IB B फॉर बेस, आपको याद आ रहा है डिफरेंशियल का ट्रांजिस्टर का, उसमें जो बेस के डिफरेंस यानी सेम करंट नहीं रहने की वजह से जो नॉन इन्वर्टिंग में करंट फ्लो हो रहा है उसको हम नाम दे देंगे IB1, और जो इन्वर्टिंग में, जबकि हमने पूरा ग्राउंड किया है, यहाँ से कोई करंट नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए बोलो तो?
क्योंकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है आइडियली, बट एज इट इज नॉट इनफाइनाइट practically, there is a finite resistance and there is a mismatch in transistor. IB1 and IB2 are different, and that's why in order to define ki how much difference is there, we define that by input offset current. What is this input offset current? It is the algebraic difference between the current into the inverting and non-inverting term. Now we need to see typical value कितनी है इसकी. Typically IIO equals to कितना input offset current is about 200 nano ampere. 200 nano ampere यानी 0.2 माइक्रो एम्पियर डिवाइड बाय 1000 करो तो माइक्रो में आ जाएगा. तो इतना कम है, बहुत कम है, बट स्टिल है. तो इनपुट बायस करंट के मामले में दो डेफिनेशन है, एक ही नहीं है. वोल्टेज के मामले में एक ही डेफिनेशन है. इनपुट ऑफसेट करंट के मामले में क्या क्या है? इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट बायस करंट. मेरा ये सवाल रहेगा कि ये ऐसा क्यों डिफाइन करना पड़ा. नाउ इट हाउ इट इज डिफाइंड. इनपुट बायस करंट इज द एवरेज ऑफ दिस टू करंट. ये जो IB1 और IB2 है ना, इसके एवरेज करंट को हम इनपुट बायस करंट बोलते हैं. तो आई कैन राइट इनपुट बायस करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं IB से. इज द एवरेज of the current that flow into the inverting and non-inverting terminal. इसके एप्लीकेशंस इतने हैं. सबसे बड़ी बात, जिसको भी प्रोजेक्ट करना है या कुछ करना है तो ऑप एम्प या एनालॉग वर्ल्ड में कुछ भी खेलना है तो ऑप एम्प इज वेरी यूजफुल. ट्रांजिस्टर में बायसिंग करना पड़ता है, यहाँ बायसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यूज कर सकते. तो मैथमेटिकली आई कैन राइट IB इक्वल्स टू IB1 प्लस IB2 by 2. ठीक है. And the typical value is, it is about 500 nano ampere maximum for 741. प्रिसीजन जो आता है, बहुत प्रिसीजन वाले आते हैं, उसका तो 7 नैनो एम्पियर ही. जो प्रिसीजन आता है उसका 7 नैनो एम्पियर है, बहुत ही कम, और पैसा भी ज्यादा लगता है. ठीक है. तो टिपिकल वैल्यू इज 500 नैनो एम्पियर.